Hello everyone, I welcome you all in this new video tutorial of class 12th and today we are going to start 13.1. जैसा कि अपने last video में I have promised you that we'll cover all the important concepts and questions of your chapter number 13. So here I am and in last video I have discussed only introductory part of your conditional probability. So let's do some questions. So guys, I want to tell you one thing कि सिर्फ आपका exercise important नहीं है. Exercise के अंदर जितने भी examples है, that's are equally important क्योंकि हम class 12th में है and class 12th is board class. बाहर से पेपर आपका होकर के बन के आएगा and कोई भी questions आ सकते हैं. तो only exercise are not important. Example के questions भी equally important है. तो हम कुछ example के questions देखते हुए आगे बढ़ेंगे. Let's have example number 5. अगर आपके पास में बुक है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैंने बुक का एक पीडीएफ ओपन करके रखा हुआ है. देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सब पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे तो मजा आएगा, क्वेश्चन साथ साथ लगाएंगे हम, है ना. थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. व्हाट वाज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी if if we want to find out the probability of E when F is given, then this will be equals to P of E intersection F upon P of F. Okay, we'll use this concept to find out the probability of given questions. Let's have example number 5. चलो भाई रीड करते हैं फटाफट. A dia is thrown 3 times. Okay. Event A and B are defined as below. यहाँ पे event A और B को उसने अलग से define कर दिया है. A is 4 on the third throw and B is 6 on the first and 5th on the second throw. Okay. नॉर्मली आप सोचो, अभी इसके सोल्यूशन में मत जाओ. आप नॉर्मली सोचो अगर आपने किसी डाया को 3 टाइम्स थ्रो किया, जस्ट सोचना है ना, 3 times throw किया तो 6 to the power 3 is equals to 216 different outcomes you will have, right? अब 216 different outcomes अपन को लिखना है. 216 होगा या फिर और ज्यादा या कम होगा, पहले यहाँ पे मत सोचिए. चलिए सिंपल सोच दे. मान लो आपने डाया को 2 times थ्रो किया, ठीक है. डाया में टोटल कितने फेसेस? 6 to the power n का कॉम्बिनेशन होता है. आपने 2 times थ्रो किया तो इट विल बी 6 to the power 2, मतलब 36 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. ये आप सोच सकते हैं. कैसे आप बनाते थे? आपने किसी क्वेश्चन में बनाया भी होगा कि भाई आइदर 1 के साथ 1 आए, 1 के साथ 2 और 1 के साथ 6. लाइकवाइज विल गो अप टू 6 1 2 6 6. ठीक है. तो you can see 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. There will be 6 different combination here, and with the every number you get the same combination. 2 1 3 1, then 4 1, then 5 1, right? Then 6 1, likewise. तो अगर आप देखेंगे तो ये 6 cross 6 का मैट्रिक्स बनता है and it will be 36. But if we throw in the dia 3 times, it will give me 6 into 6 into 6, which is 36 into 6. So it will give you 6 is a 36, 6 is a 18 and 2 1 6. ठीक है. It means 6 to the power n. Okay. Now आपको लगा कि मैम 216 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाना विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो ठीक है, हमको वैसे भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछेगा, है ना. आप देखिए यहाँ पे नीचे. The question is find the probability of A given that B has already occurred. जैसे इसने बोल दिया given that some event has already occurred, it means we'll use the concept of reduced sample space. Get it? और अगर आपका सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गया है तो आपको ये 6216 सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है. What has already occurred? B has already occurred. It means out of the 216 different outcomes you have reduced sample space as 6 on the first and 5 on the second throw. आप यहाँ पे restricted हो गए. ठीक है. 6 on the first and 5 on the second throw. एंड आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? ये वाले इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो जो इवेंट हमको दिखाई देते जा रहा है, पहले हम उसके लिए सेट्स बना लेते हैं, देन विल सी कैसे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. ठीक है. हमने यहाँ पे लिखा ए जो इवेंट है इट इज 4 ऑन द थर्ड थ्रो. तो आप देखिए जब आप 1 के साथ में थ्रो करेंगे तो 1 1 4 1 2 4 पूरा 1 6 4, ये पूरे 6 कॉम्बिनेशंस आएंगे. सिमिलरली 2 वाले भी पूरे 6 कॉम्बिनेशंस आएंगे, 3 वाले भी पूरे 6 कॉम्बिनेशंस, then 4 वाले पूरे 6 कॉम्बिनेशन, 4 1 4 2 4 3 4 4, 5 वाले भी पूरे 6 कॉम्बिनेशन एंड 6 वाले भी पूरे कॉम्बिनेशंस. लेकिन बताइए 6 कॉम्बिनेशंस मैंने बोला, यहाँ पे तो 6 कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे भी 2 1 4 2 2 2 4 2 3 4 2 5 4 2 2 6 2 6 4 ऐसा. ठीक है.
तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, आप बताइए टोटल कितने हो गए यहाँ पे। ये हो गए आपके 36। अगर 114 124 अपन देखें, नॉर्मली देखिए 114, फिर 124, 134, फिर 144, फिर 154 एंड 164। आप देखो यहाँ पे टोटल कितने 6 है, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हुए मेरे पास में 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 6 36 कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये अपना सैंपल स्पेस नहीं है ना, सैंपल स्पेस में तो टोटल 216 आउटकम्स है। ये हमारा इवेंट ई है। व्हाट अबाउट बी? बी इज 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड थ्रो। तो हमको पहले वाले में 6 चाहिए, सेकेंड वाले में 5 चाहिए। मतलब भाई हमने अपना 6 और 5 अपन ने फिक्स कर लिया। कौन सा नंबर चेंज हो सकता है? लास्ट वाला। तो ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5 एंड इट कैन बी 6। It means we can have 6 different outcomes. If I want to ask you what is the common in between A and B, so you can see only this value is common, 654 is common. ठीक है, वो जो कि यहाँ कहीं पे आएगा, यहाँ पे 654. Okay, so this value is common. Now, what is the formula for conditional probability? Probability of A when B is given, which will be equals to probability of A intersection B upon probability of B. Okay, so probability of A intersection B will be 1 by 216, 1 by 216, and probability of B will be 6 by 216. यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सिर्फ 1 आया था, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। यहाँ पे टोटल 6 वैल्यूज थी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। 216 क्यों है? टोटल आउटकम जो आपका सैंपल स्पेस होता है वो अपन ने किया 1 by 216 डिवाइडेड बाई 6 by 216 से आ गया आपका 1 by 6। गेट इट? तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे ही अपन ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखा, इसका मतलब सिंपल है ना यार, ये एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस है एंड एन एफ अपॉन एन एस है, यही तो होता है ना। तो ये वाला तो टोटल सैंपल स्पेस होता है, राइट? ठीक है, जब मैंने आप लोग को इसका फिनोमेना बताया था, तब मैंने बताया था कि रिड्यूस सैंपल स्पेस कैसे यूज होता है, हाउ इट इज सेम एज द रिड्यूस सैंपल स्पेस। ठीक है, ये जो वैल्यू आती है ये अपन डायरेक्टली रिड्यूस सैंपल स्पेस से लेकर के आ सकते हैं। जैसे आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे कैसे। अगर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं भी जानते, और अगर आप सपोज किसी कंपटीशन एग्जाम में इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, अगर आप यहाँ पे 216 और 216 वाला कंसेप्ट नहीं भी जान पा रहे हैं या इस फॉर्मूले को नहीं भी समझ पा रहे हैं, तो भी हो जाएगा ये। probability of A when B is already is given या has occurred। ठीक है, तो ये वाला इवेंट हो गया है, ये वाला इवेंट हो गया, मतलब ये आपका सैंपल स्पेस बन गया है, रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑकर्ड, और ए और बी के बीच में कितनी वैल्यूज है? एक ही वैल्यू है। ठीक है, तो 1/6 ये ऐसे ही आ गया। जो चाहिए वो ये वाली वैल्यू थी कि भाई मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को थर्ड थ्रो में 4 चाहिए था, तो वो ये वाली वैल्यू थी। इस सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग एक ही फेवरेबल आउटकम है ना आपका, तो यहाँ पे 1 आ गया, और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी? 6 थी, 1/6। बट आपको इस तरीके से नहीं जानना है, आप ये वाला तरीका कॉम्पिटिशन में यूज कर सकते हैं। आप अभी सिंस क्लास 12th में हैं, इसलिए आप इस तरीके का मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एग्जांपल नंबर 5। लेट्स हैव एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको देखते हैं, फिर एक्सरसाइज से 2-4 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे ऐसी क्लास में। एग्जांपल नंबर 7, फटाफट एग्जांपल नंबर 5 से अपना दिमाग हटा करके एग्जांपल नंबर 7 में ये सब लोग क्या लिखा हुआ है? कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। भाई ठीक है, चलो एक कॉइन है, इसको टॉस कर दो, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल आएगा, है ना। अब बोलोगे मैम इतना तो हमको पता ही है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना तो आप सबको पता है, मेरे को भी पता ही है। अब देखिए, इफ द कॉइन शोज हेड, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। मुझे पता हो जब मैंने कॉइन को टॉस किया तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल? ऑब्वियसली हाफ एंड हाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस कंसेप्ट को समझना है ना। पहले आपने कॉइन को थ्रो किया, it can give me head or tail and the probability of getting head is half and getting tail is also half. Now इसने बोला if the coin shows head toss it again। अगर उसने हेड शो किया तो आप उसको फिर से टॉस कर दीजिए। इस हेड के साथ में हो सकता है आपको हेड मिले, या फिर इस हेड के साथ में हो सकता है आपको क्या मिल जाए? टेल मिल जाए। ठीक है, बट एक कंडीशन और है भाई हमारे पास में, कि अगर आपने इसको टॉस किया और अगर आपको टेल मिल रहा है, देन थ्रो अ डाया। तो आपने टेल अगर आपके पास में आया तो यू हैव थ्रोन वन डाया।
तो obviously dia will give you 6 different outcomes, so you have made combinations with tail like this. ठीक है, अब कहानी ये है कि मैम अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी ये प्रोबेबिलिटी हाफ ही होगी हेड और टेल आने की, बट यार ये तो ऑलरेडी हाफ यहाँ पे हो चुका था उसमें, और ये हाफ और हाफ, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 1/4, 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सिमिलरली अगर आपने किसी डाया को थ्रो किया, सो गेटिंग all this 6 number, the probability of getting all this 6 number 1 by 1, the probability is 1/6, right? But tail आने की probability already half है, तो half के साथ में 1/6 multiply करोगे तो it will give you 1/12 all the time. ठीक है, so these are the different probabilities. ये जो दिख रहा है ना, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है समझना। अब हो सकता है कि हम क्वेश्चन बनाते वक्त इसमें गलती कर ले, इसीलिए इस क्वेश्चन को देखना, एग्जाम्पल नंबर 7 को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक अपन पहुंच गए कि हमको ये समझ में आ गया भाई कि जो फिगर में 1/4 और 1/12 लिखा था ये कैसे आ गया। अब समझते हैं कि क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन इज आस्क्ड मी फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो इसमें ना क्वेश्चन को समझना बहुत आसान है। 13.1 का क्वेश्चन है, कैसे वो लिखा रहता है ऑलरेडी कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सच एंड सच इवेंट। ठीक है, to find the conditional probability of the event that the dia shows a number greater than 4। मतलब अगर ये कोई इवेंट है, the dia shows number greater than 4, और भी कोई इवेंट है, given that there is at least one tail, there is at least one tail। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि probability of A when B given, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये लास्ट लाइन ही आपको सब कुछ बता देती है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। गिवन दैट जो रहेगा दिस विल बी इन द डिनोमिनेटर, जो आपको फाइंड आउट करना रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, आपके न्यूमरेटर। ठीक है, बस तो फिर पूरी कहानी खत्म है। यहाँ से अपन देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे आपके बुक ने इसको लिया हुआ है ई एंड एफ। ठीक है, दो इवेंट इसने लिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले इसने एक इवेंट ई लिया और एक इवेंट एफ लिया है। एफ क्या लिया है, एफ विद द इवेंट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। तो एक ये हेड वाला था, ये टेल वाला था। यहाँ पे हेड और टेल फिर से आ सकता था, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता था। तो ये वाली पूरी केसेस आएंगे। एटलीस्ट वन का मतलब मैंने बताया ही था आप लोग को लास्ट क्लास में। एटलीस्ट वन कहने का मतलब हुआ वन एंड मोर। वन एंड मोर, एटमोस्ट क्या बताया था मैंने, अगर यही ऐसा होता कि सपोज करते हैं एटमोस्ट 2 बोलता, तो क्या बोलते हैं आप 2 एंड लेस, कहाँ तक, 0 तक। ठीक है, एटलीस्ट जो भी लिखा रहेगा उससे ज्यादा वैल्यू तक आप ले सकते हैं, जितनी ज्यादा आ सकती है। तो ये वाले तो पूरे केस आएंगे, T1 T2 T3 T4 T5 T6 सब में एक एक बार तो कम से कम आया है। और एक ये वाला भी केस आएगा, इसमें भी एक बार आया है। तो ये HT भी अपन ने लिया, ये F हो गया। ठीक है, सेकेंड केस क्या है, द डाया शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो बस T के साथ में 5 और T के साथ में क्या आना चाहिए, 6। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। आइए देखिए, T के साथ में 5 और T के साथ में 6। अगर मैं ये वाली वैल्यू, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो भी सिर्फ ये दोनों वैल्यू कॉमन है। ओके, अब थोड़ा सा इसको स्किप करते हैं अपन। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F करूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F इज गिवन, तो अपन इस तरीके से लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन आपको यहाँ पे शायद दिख रहा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। कैसे, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ये एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दोनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है जैसा आप लोग को लग रहा है। कैसा कि मैम ये 2 है ना, और ये 2 बाई कितना हो गया, ये 6 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 2/7 है मैम। बिल्कुल नहीं, मैंने आप लोग को अभी ऊपर फिगर में दिखाया था कि भाई इनकी प्रोबेबिलिटीज इंडिविजुअली अलग है। देखिए यहाँ पे अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो 1/12 1/12 है ना, इसको ध्यान में रखना है अपने को। तो हम जब नीचे आके देखते हैं, यहीं पे सब अपन गलती कर सकते हैं, इसलिए मैं बार बार मार्क कर रही हूँ इसको। जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F निकालूंगी, उसमें दो वैल्यूज है। इसके भी होने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है एंड its probability is also 1/12. So you will add these two probabilities. Okay, it will give you 1/6. Now, since I also need probability of F, so uh, in the event F we have 7 different elements and we know the probability of all the elements. So you will add all the probabilities like this and you'll get 3/4. Okay, so the 2/7 will not be answered, 2/9 will be the answer. This is my answer.
नॉर्मली बच्चे क्या कर सकते हैं कि भाई मैम ये तो अपना रिड्यूस सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है, इसमें से जो मेरा फेवरेबल है वो 2 है, कौन कौन सा, T5 और T6। तो चलो ना, ये 2 और ये कितना हो गया, 7 हो गया। अभी तक तो आप ऐसे ही कराते आए हो, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्यों अपन ने डिफरेंट किया, क्योंकि 2 केस बने, पहले आपने कॉइन को थ्रो किया और कॉइन को थ्रो करने के बाद फिर से कॉइन को थ्रो कर दिया और फिर यहाँ पे डाई का थ्रो किया, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज अलग हो गई। दैट्स व्हाई वी हैव यू नो फॉलो सम डिफरेंट स्टेप्स। एग्जांपल नंबर 7 इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट थे। फटाफट अपन एक्सरसाइज में आते हैं। मैं आप लोग को बता देती हूँ कि कैसे क्या क्या चीजें पढ़नी है और कितनी पढ़नी है। 13.1 कुछ भी नहीं दिया, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड है, आपको दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई कैसे निकालना है। इट विल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। जो नीचे लिखा रहता है वो डिनोमिनेटर में, बाकी उन दोनों का इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में। एंड यू कैन सी दैट एवरी वैल्यू इज गिवन टू यू, ठीक है। यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज एंड you'll find the answer, you'll have the answer, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम्स में नहीं आते हैं, इट इज ओनली फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। दीज क्वेश्चंस आर ओनली फॉर योर प्रैक्टिस, दीज क्वेश्चंस, तो आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है ना जो आप प्रैक्टिस करके बताओ कि मैम इसका आंसर इतना आने वाला, इसका आंसर इतना आने वाला, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 भी इतना कुछ टफ नहीं है, बट एक बार देख लो, जरा सा बता देती हूँ। अपन 13.1 कवर करते हुए चलेंगे। इसमें लिखा हुआ है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर ई की एक वैल्यू गिवन है मेरे को, हेड ऑन द थर्ड टॉस एंड एफ इज हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, ठीक है। तो उन दोनों को बनाएंगे और अपने को क्या करना है, अपने को डिटरमिन करना है पी ऑफ ई बाई एफ। 6 to 9 में मेरे को पूरे वैसे ही क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देती हूँ सो दैट ये आप लोग के लिए इजी हो जाए। Probability of E in E by F is equals to probability of E intersection F upon probability of F, ठीक है। पहले समझो, ये वाले क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। A is head on the third toss, head on the third toss। क्या बोला हुआ है, a coin is tossed 3 times। लास्ट वीडियो में 3 टाइम्स का सैंपल स्पेस मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया हुआ है, तो आप लोगों को पता है कि सैंपल स्पेस विल बी H H H H then 4 times T, then H H T T H H T T, then H T, then H T, then H T, then H T। ये 8 डिफरेंट आउटकम्स है। आप फटाफट इसको E और F बना लीजिए। E विल बी हेड ऑन द थर्ड टॉस, कौन कौन सी चीजें आएंगी, चलिए बताइए। ये वाला आ जाएगा, ये भी आएगा, ये भी एंड ये भी। नोट इट डाउन, ट्रिपल एच, देन एच टी एच। एकदम फिंगर टिप्स में हमको सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब आपका टाइम आप मैनेज कर पाओगे, बिकॉज क्वेश्चन पेपर का पैटर्न लेंदी हो चुका है। अगर आप किसी भी चीज में जरा सा भी कंफ्यूज रहेंगे तो थिंग्स विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। एफ इज व्हाट, एफ इज हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, देख लो भाई कौन कौन से में, एक तो ये दिख रहा है मेरे को, एक ये दिख रहा है और देखो नहीं दिख रहा है। these 2 values will come, this, this, this। अब हमको क्या क्या चाहिए देख लीजिए। I need E intersection F, so E intersection F will give me this value, and HHT won't come, so only triple H will come, so probability of E intersection F will give me 1/8 this time। जब आप इस फॉर्मूले को यूज करते रहते हैं तब आप ये जो आपको ओरिजिनल सैंपल स्पेस है उसी को आप लेते हैं, ठीक है। और किस चीज की नीड है मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी 2/8, है ना। कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे लिखिए 2/8, so it will give me 1/4। just put the values, probability of intersection f is 1/8 and it is 1/4, so it will be 4/8 and it's give me 1/2, so the answer is 1/2। answer is what, 1/2, this is my answer, ठीक है। पहले आप ये पूरा स्टेप करेंगे इंक्लूडिंग दिस सैंपल स्पेस, और ये वाला स्टेप आप आखिरी में लिखेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 बन जाएंगे। बस आपको बस इसी सैंपल स्पेस से इन इवेंट्स को बनाते जाना है, ये भी आसान है, ठीक है, और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आ सकता है 2 मार्क्स वाले में, तो 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है।
अब जल्दी से अपन क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देखते हैं। 10 थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड। ओके, एक ब्लैक डाई है, फटक से एक ब्लैक डाया बना लो, ठीक है। और अपन को क्या बनाना है, एक रेड कलर का डाया बनाना है, एक ये रेड कलर का डाया बनाना है। अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड, ठीक है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, ठीक है। आप एक इवेंट ले लो, अ सम ग्रेटर देन 9, तो मैंने ये ले लिया कि सम जो है वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 9, गिवन दैट द ब्लैक डाया रिजल्टेड इन अ 5। एक इवेंट आप ले लीजिए, ब्लैक रिजल्टेड 5, ठीक है। अपन ने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा, ब्लैक क्या रिजल्ट किया है, ब्लैक रिजल्टेड इन विच नंबर, 5 नंबर, ठीक है। तो ठीक है यार, करने की कोशिश करते हैं इसको अपन। चलिए, ओके, लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। अब हमको सबसे पहले करना होगा, आपने क्या किया है, एक एक डाया को रोल किया है, तो टोटल मतलब एक ब्लैक कलर का डाया है और एक रेड कलर का डाया है। तो आपके पास में पहले वाले डाया में भी 6 नंबर्स हैं एंड सेकंड डाया में भी 6, टोटल यू विल हैव 36 डिफरेंट आउटकम्स। ओके, तो ये आपका एस हो गया है ना। आप पहले अब ए वाले इवेंट के लिए सेट बनाइए, सम शुड बी ग्रेटर देन 9। ये हो जाएगा आपका, सोचो सोचो, 1 1 वाला तो कुछ भी नहीं हो सकता, 2 वाला भी नहीं हो सकता, 2 2 2 1 2 2 2 3 ऐसा नहीं हो सकता। 4 वाले में 4 और 5 9 होगा, और 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 होगा। तो अपन ने क्या किया, 4 6 किया, फिर 5 और 5 किया, देन 5 और 6 कर दिया, आफ्टर दैट 6 4 भी होगा, देन 6 5, देन 6 6 एंड, ओके ना यार, और कितना करोगे है ना। ये वो सारे नंबर्स है जिनका सम जो है वो ग्रेटर देन 9 है ना। अब देखिए, आप लोगों को सबको कॉपी में करते चलना है ना। बी, ब्लैक रिजल्टेड 5, जो सेकंड वाला डाया है आपका, ब्लैक रिजल्टेड 5। तो हम सिंस अपन ने जैसा उसने बोला तो उसे ऑर्डर में लिया, पहला वाला अपन ने ब्लैक लिया है, तो फर्स्ट वाले पे अपन को क्या करना है, रिजल्ट करना है 5। तो 5 वाले सारे नंबर्स आएंगे, 5 1 आएगा, 5 2 आएगा भाई, 3 भी आएगा, 4 5 6 सब आएगा, ठीक है। अब कहानी को समझिए, 4 5 देन 6। अब कहानी को समझते हैं, क्या मेरे को फाइंड आउट करने के लिए बोला है, इतना सही रहेगा, पूरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक ही काम है। व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, आई नीड टू फाइंड आउट सम ग्रेटर देन 9 मेरे को फाइंड आउट करना है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, it means probability of A intersection B upon probability of B. Now tell me what is common between A and B. What is common between A and B? 5 5 is common, right? And और देख लो भाई, और क्या common है, 5 6 is also common, 5 6 and 5 6. So it will be A intersection B, right? So 2 by 6 upon, what is the probability of B? 2 by 36, sorry. What is the probability of B? You can see that B have 6 different values, and this will be 6 by 36. So this and this will be cancelled out. This will be 2 by 6, and it is coming out as 1 by 3. And here we have the answer. Okay. The next question of 10th is also very similar to this question. तो मैंने एक अप्रोच बताया है, आई होप आप लोगों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अब ज्यादा समझ में आने लग गई होगी, क्या कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल, एक ही चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर हम 13.1 को यहीं पे हमारी क्लास ये सेशन कंपोज करेंगे। तो लेट्स हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। टोटल अपने पास 17 क्वेश्चन है, और इसमें जो 13 14 तरफ के क्वेश्चन है वो अच्छे हैं, ठीक है, उसको डिस्कस कर सकते हैं अपन। तो चलिए, कुछ ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है ना, तो पढ़ के देखते हैं, अच्छा लग रहा था। An instructor has a question bank consisting of 300 easy true false questions. देखिए भाई, जो भी डेटा है उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है ना, लिखना पड़ता है कि क्या डेटा मेरे को गिवन है। I have given with 300 true and false questions, ठीक है। अब इसमें बोला है easy, अब देखो ये मैं भूल रही थी, easy है ये, 300 easy true false question, very good। 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, ठीक है। अब 200 उसने दिया है ट्रू फॉल्स, बट ये डिफिकल्ट लेवल के, ओके, वेरी नाइस। नाउ
500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 500 easy MCQs, well done। Then 400 difficult, जैसे ये था ना वैसे ये भी है। जैसे यहाँ पे अपन एक बैरियर बना देते हैं तो अपने को समझ में आएगा। 400 MCQs है जो कि डिफिकल्ट है। ऐसे आप लोग के एग्जाम में भी तो आता है ना, बट आप लोग के पास में इतने सारे थोड़ी ना क्वेश्चन रहते हैं, फिर तो पेपर ही नहीं बना पाओगे आप लोग। क्यों? 40 क्वेश्चन में अपन खत्म हो जाते हैं सब। स्पीड बहुत अच्छी रखिएगा, बिकॉज स्पीड की जरूरत है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाता है आप लोग के लिए, है ना, स्पीड पे बहुत काम करना है। ओके, अब अपन क्वेश्चन में आते हैं। लेट्स हैव द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला ये सब तो गिवन है भाई। इफ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, ये पूरा एक क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है ना, ये पूरा क्या है, ये क्वेश्चन बैंक है जहाँ से आप प्रैक्टिस करते हैं अपने बोर्ड पेपर के लिए। ठीक है, नाउ if a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question? Suppose करते हैं अपने event दे दिया easy question का, it will be an easy question given that it is a multiple choice question। भी मैंने बोला कि भाई वो MCQ है, मतलब निकालना क्या हुआ, जो given है वो कहाँ रहेगा, नीचे। जो find out करना है, it will be in the numerator। It means P A intersection B upon P of B। This I need to find out। बताओ कितने लोग मेरे साथ? सबको साथ देना पड़ेगा क्योंकि यही निकालना है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, समझना, इजी MCQ कौन सा है देखो तो, इजी MCQ 500। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B वाले में ये आएगा 500 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 1400 है। काउंट कर लीजिए, 300 प्लस 200 500 प्लस 500,000 और ये कितना हो गया 400, कितना हो गया यार 1400। so it will be 500 by 1400। what about the probability of B? B क्या था मेरा, MCQ क्वेश्चन था। MCQ तो इजी भी है डिफिकल्ट भी है, बट उसने B को कुछ ऐसा बोला नहीं है कि डिफिकल्ट या इजी, तो पूरे को लेना पड़ेगा। 500 और 400 टोटल कितने हो गए, 900 आउट ऑफ 1400। तो ये कट गया भाई, ये आ गया 9/14 एंड ये हो गया आपका 5/14। बस तो फिर क्या है, वैल्यू रख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has already occurred, it will be 5/14 upon 9/14। 14 cancel, answer is 5/9। so the required probability is 5/9। So this is all about your 13.1 guys, and I hope आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप लोग के लिए जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे क्योंकि पास आ गया एग्जाम, उनके लिए हेल्प करेगा। और कुछ बच्चे अभी रिवीजन मोड में होंगे, कुछ बच्चे हो सकता है अभी नया सेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, जो 11th से 12th में गए हो अभी नया सेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल यू पीपल, एंड मैं आप ही लोग के लिए सारे वीडियोस बनाती हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा कि कैसा लग रहा है वीडियो आपको, और इस सीरीज में हम नेक्स्ट वीडियो 13.2 पे लेकर के आएंगे विद द कंसेप्ट्स ऑफ 13.2 एंड द क्वेश्चंस ऑफ 13.2। Thank you for attending this class, watching this video. Do like my video, share this, and do not forget to subscribe my channel if you are very new to this. Thank you guys.